discussion in this session. In a world constrained by limitations and expectations, women rise above, defying odds and breaking barriers. United in diverse communities, they uplift and support one another. Through education, nature, art, and empowerment, they inspire progress and pave the way for an inclusive and equitable future. With unwavering strength and resilience, women leave no obstacle unchallenged, forging paths of empowerment and breaking barriers along the way, creating a world where their potential knows no bounds. I'd now like to invite Mr. Gaurav Shukla, Deputy News Editor, News 18 Punjab Haryana, to please escort the panelists on the stage. Kamardeep Kaur, SSP, Chandigarh. Kamardeep Kaur, a 2013 batch IPS officer, is the SSP of Chandigarh. She graduated from Punjab Engineering College. She herself takes interest in investigating cases. As Kapurthala SSP, Kamardeep Kaur supervised the investigation in the rape case of a 7-year-old girl, where the charge sheet was filed within 12 days and the district court awarded death penalty to the guilty. Sangeeta Kathat. Retired Group Captain Sangeeta Kathat was commissioned in the administrative branch of the Indian Air Force in 1998. She has served for 21 years and was commended by the Chief of Air Staff on 2 separate occasions. Over to you, Gaurav. Hello. Thank you, Harsh. Thank you very much. Welcome all. I'll start with some lines, especially for our guest. कहते हैं कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटा हो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, बड़े शौक से गिरता है दरिया किसी समंदर में, पर समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता. बहुत बहुत वेलकम आपका. I'll start with introduction. I think there is no need to introduce feminism part in words sitting next to me. I'll start with breaking barriers. Ma'am, start with you. Breaking barriers या broke barriers, वो कौन से ऐसे बैरियर्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, हर्डल्स हैं जो आपकी लाइफ में आए और आपने उनको दूर किया? मैं इसको एक और भी चीज एंगल से देखूंगा कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स ऐसे होते हैं जो आपको एक डाइवर्शन तो दे देते हैं, लेकिन वो भी आपके लिए एक अलग ही आप कह सकते हैं बेनिफिशियल हो जाता है. तो वो कौन से आपको लगता है कि आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ की जर्नी में ऐसे ऑब्स्टेकल्स या बैरियर्स रहे हैं जो आपको सोसाइटी के वो बैरियर्स जो आपको दूर करने पड़े, उनको तोड़ना पड़ा? मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताती हूँ. मैं मोहाली की रहने वाली हूँ. एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं. उसके बाद अच्छी एजुकेशन और कोचिंग के बाद इंजीनियरिंग मैंने चंडीगढ़ से ही, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से की है. तो जो हम आम पढ़ते हैं, जो चीज़ें, आज का जो टॉपिक है ब्रेकिंग बैरियर्स, कुछ हद तक हमने भी कई बैरियर्स तोड़े हैं जिसके बारे में भी बात करेंगे. बट जितनी प्रिविलेज्ड मेरी अपब्रिंगिंग रही है और एजुकेशन रही है, उसमें एजुकेशन टाइम पे मुझे नहीं लगता कि इतने हमें कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. देयर आर समटाइम्स मेंटल बैरियर्स, लड़कियों के मन में मेंटल बैरियर्स होते हैं कि स्कूल जाना है. हम नाउ आई हैव सर्व्ड इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब, कपूरथला, फिरोजपुर. एक अभी रिसेंटली न्यूज में भी आया था कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में 2 गर्ल्स हु यूज्ड टू गो ऑन अ बोट टू क्रॉस सतलुज एंड गो टू द स्कूल. इतनी प्रॉब्लम्स हमें प्रिविलेज्ड क्लास को मैं बोलूंगी सिटीज में इतनी नहीं आती. बट टॉकिंग अबाउट अ ब्रॉडर सिनेरियो इन द कंट्री और इन द वर्ल्ड, देयर आर मेनी बैरियर्स राइट फ्रॉम द बर्थ till the very end, throughout the life, जो the women have to face, whether in personal lives or in professional lives. Once I got selected in Indian Police Service,
पुलिस जैसे कि हम जानते हैं इज एसोसिएटेड विद मसल पावर। शुरू से ही पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस को मसल पावर और पावर ऑफ द स्टेट की तरह से देखा जाता था। तो ट्रेडिशनली जब डेमोक्रेसीज नहीं होती थी और हम पुरानी बातें करें तो तब हम देखते हैं कि women did not obviously have a very good representation in armed forces because it was more associated with strength. But with changing times, आज की डेट में हम देखें, it is not पुलिस में increasing representation of women. मसल पावर उतनी नहीं रही है जितना मैनेजमेंट लेवल पे women are heading the force. Lower level पे, constabulary level पे, we have increasing number of women today. They have broken barriers in their students' lives. They have broken barriers during the service. ऐसी जगहों पे पोस्ट होना जहाँ पे ट्रेडिशनली कोई विमेन आज तक पोस्ट नहीं रही हैं। इंडिपेंडेंस के बाद भी हम देखते हैं आफ्टर 75 years of independence, there are many posts where women have never served. There are many places where women have never served or women, it was not thought that women can serve in those places. So there is not one barrier. There are many barriers which are broken daily, which are broken in all phases of life, in all aspects of life, in all age groups. And we can't even, if we start talking about it, it'll take ages. But then we need to appreciate कि इतना काम जहाँ हो चुका है वहाँ पे और भी अभी बहुत होने वाला है। संगीता मैम, ऑब्स्टेकल्स का हम जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप फैमिली बैकग्राउंड आपकी आर्मी से है, आपके फादर आर्मी बैकग्राउंड से थे, तो ये एडवांटेज रहती है, डिसएडवांटेज रहती है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? आप ग्रुप कैप्टन तक के डेजिग्नेशन तक पहुंचे, मैं उसके ऊपर आऊंगा कि उसके बाद आप एक अलग फील्ड को आके ज्वाइन करते हैं, तो ये किस तरह से आप अपनी जर्नी को देखते हैं, स्पेशली जब आप एज अ ग्रुप कैप्टन देखते हैं खुद को? मैं भी, मतलब जो मेरी जर्नी रही है वो अगर बचपन से शुरू करूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। सो आई विल जस्ट कट शॉर्ट माय चाइल्डहुड एंड से दैट ओके, आई वाज आल्सो, आई गॉट लॉट ऑफ प्रिविलेजेस बिकॉज मेरे पिताजी फौज में थे, तो उनके फौज में होने से एडवांटेजेस भी रहते हैं बिकॉज आप इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी बन जाते हैं, और डिसएडवांटेजेस रहते हैं कि आपको बहुत कम पिताजी दिखने को मिलते हैं, बहुत कम समय आप उनके साथ बिता सकते हैं। बट येस, जो मेरा प्राइमरी मोटिवेशन और जो इंस्पिरेशन थे फौज को ज्वाइन करने के लिए, वो मेरे फादर ही थे। और बहुत कम समय बचपन पे मैंने उनके साथ बिताया बिकॉज वो इन्फेंट्री के थे, 2nd गढ़वाल राइफल्स के थे, तो मोस्टली ही वॉज पोस्टेड टू फील्ड एरियाज। बट जब भी आते थे और उनकी जो यूनिफॉर्म थी, जब मैं उसको देखती थी तो उसमें जो पी कैप थी वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, एंड चुपचाप से मैं उस पी कैप को पहन के शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को बहुत एडमायर भी किया करती थी। बट एट दैट टाइम आई यूज्ड टू बी सैड बिकॉज दैट टाइम देयर वर नो अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेज। Subsequently, as I grew up and sometimes in college, I guess I came to know that अब फौज में लड़कियों को भी ले रहे हैं, and that was a time I had already decided that yes, this is what I want to do, and now this opportunity has been open to me, so I definitely want to do it. So that is how I filled up the forms for Army as well as Air Force, and Air Force पे मेरा पहले selection हो गया था, तो मैं Air Force में मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने से पहले जो आपने सवाल पूछा कि पिताजी फौज में थे तो एडवांटेज था कि नहीं था, तो ज्वाइन करने में और आपको जब अपनी कैपेबिलिटी वहाँ सिलेक्शन में प्रूव करनी होती है तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड कुछ भी है, आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, आपका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंडिपेंडेंटली होता है। सो व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड इन द एयरफोर्स, माई फादर हैड ओनली टोल्ड मी वन थिंग, he said ज्वाइन करना है या नहीं करना है, दिस इज टोटली योर चॉइस, योर डिसीजन इन लाइफ whether you want to join Air Force Academy or not, but if you join then remember that you cannot come back. That means my house doors are closed, you cannot come in between training, because he knew what kind of training would be there. So he said आप जाओ, आपकी डिसीजन है, बट आप बीच में वापस नहीं आ सकते। So I think that was a very big boost for me, and that was something I knew I couldn't go back home. So I strived, and definitely training जो होती है वो भी एक बहुत बड़ा बैरियर होता है, because इंडिया में उस वक्त स्पेशली गर्ल्स को इतना ज्यादा फिजिकल एक्सपोजर नहीं मिलता था। सो आई वाज नॉट अ एथलेटिक काइंड ऑफ अ पर्सन हु वाज इन्वॉल्वड इनटू एथलेटिक्स, and suddenly you get into academy and then the rigorous training, so definitely that is one big barrier that you had to get through.
but the entire course does it and you do it together. So with that strong willpower and no way to go back home, I think I did that. मैं उस अगले सवाल पर भी साथ ही आ जाता हूं कि आमतौर पर हम बात करते हैं जमीन से आसमां की ओर, आपने आसमां को भी छुआ और उसके बाद रैंप पर भी आप वॉक करते हुए नजर आए। ये मतलब एक अलग ही कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आया। ये भी कोई अलग तरीके से आपने सोचा और कैसे, क्योंकि इंस्पायर कर रहे हैं आप बहुत सारी फीमेल्स को जो सोच रही हैं कि हाँ एक फील्ड में आपने बहुत कुछ अच्छा अचीव कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, हमेशा जो दिमाग में चलता रहता है कि अब आगे क्या, अब आगे क्या। So 2019, my tenure was very nice in the Air Force. I served for around 21 years. And 21 years के बाद, due to personal reasons, I had to take a pre-release in 2019. जब मैंने pre-release लिया, उस वक्त ऐसा कोई plan नहीं था कि मैं modeling या fashion shows या beauty pageants करूँगी। ऐसा there was no thought, no planning in my mind. My purpose of leaving Forge was due to personal reasons. My father had an open heart surgery and my children also needed me. So that was my reason. But then बचपन में एक छोटा सा कभी सपना जैसा सारी लड़कियां देखती हैं, मैंने भी देखा था कि हम रैंप पे वॉक करें। आई थिंक दैट इज अ ड्रीम ऑफ मोस्ट ऑफ द गर्ल्स। और एक क्राउन छोटा सा हमारे सिर पे हुआ एंड यू फील लाइक यू आर अ क्वीन एंड यू वांट टू वॉक द रैंप एंड द एंटायर वर्ल्ड इज योर्स लाइक। सो वैसे एक छोटा सपना बहुत थोड़े से टेम्पररी फेस के लिए मैंने भी देखा था, शायद क्लास 12th में। And those days modeling was not considered, very reputable or, very respectable kind of a thing. And there was definitely a total no, that no, this is not something that you're going to get into. And my love for my nation, I think, led me to doing March Past. तो रैंप वॉक छूट गई थी और मैं मार्च पास्ट में आ चुकी थी. And I have loved those March Past as well. And but subsequently when I took retirement, it was COVID time. And COVID made me realize that, okay, those small little things in life that are very important. This is what COVID taught us, कि छोटी छोटी चीजें जो हम लाइफ में छोड़ देते हैं वो भी बहुत important है. और मुझे लगा समय है तो मैं थोड़ा सा इस तरफ देखूं. And some of my course-mates also told me, नहीं, you must do it. So that is how I entered into modeling. Which is more interesting? No, I think both are definitely, both have their own pluses and both have their own minuses. And I've loved both of them. I've loved March Past as well, and I've loved ramp walks as well. So both of them are interesting. कमल मैम, मैं आपका ट्विटर अकाउंट देख रहा था, उसके ऊपर मदर कॉप, तो ये मदर वहां पर भी पहले है, हर जगह पहले। किस तरह से आप मैनेज कर रही हैं इन चीजों को? क्योंकि मैं आपका पिछले कुछ टाइम की पोस्टिंग देख रहा था, मलेरकोटला, चंडीगढ़ है, उसके बाद एक दो और जगह आपकी पोस्टिंग रही, तो ये कैसे चीजें मैनेज होती हैं? सबसे पहले तो क्योंकि द नेचर ऑफ जॉब इज सच, जब से नाउ आई हैव 10 years ऑफ सर्विस बिहाइंड मी, जैसे कि आपने बताया कि मलेरकोटला जब नया डिस्ट्रिक्ट बना तो वहां पे मुझे लगाया गया. उसके बाद फिरोजपुर व्हेन आई जॉइंड, आई वाज द फर्स्ट फीमेल हु वाज एवर पोस्टेड देयर. बॉर्डर एरिया था, और बिल्कुल अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मैं फिरोजपुर में रही हूँ. द नेचर ऑफ जॉब इज सच. पुलिसिंग एक इमरजेंसी सर्विस है, तो 24/7 हमें अपने टोज पे रहना पड़ता है. फोन नहीं ऑफ कर सकते, सुबह जाके कब शाम को वापस आना है पता नहीं होता. तो वो सब ठीक है, वो सब भी काम है, बट देन आपकी पर्सनल लाइफ भी है. आई हैव अ 4-year-old सन, and I also have responsibility towards him, towards my family, towards the society that I'm serving, towards my department. So everything goes hand in hand, and women, I think, at some level have to balance all. अगर मेल्स अगर थोड़ा कम टाइम घर पे दे पाएं तो इतना फर्क नहीं पड़ता, और इट इज ऑल्सो फॉरगिवेबल टू सम एक्सटेंट इन आवर सोसाइटी. बट अगर मदर घर पे ना ज्यादा टाइम दे पाए तो एक तो खुद को गिल्ट होता है. देयर इज अ थिंग कॉल्ड मदर्स गिल्ट. सो आई ऑल्सो फील कि 2 दिन हो गए हैं मैंने उसको मतलब बैठ के खाना नहीं खाया इकट्ठे, या हमने बात नहीं की अच्छे से, उसकी शक्ल नहीं देखी, तो अ मदर्स गिल्ट ऑल्सो सेट्स इन. सो यू हैव टू रियली बैलेंस द टू. इट इज वेरी डिफिकल्ट, और हर रोज अच्छी तरह बैलेंस हो भी नहीं पाता. कभी काम पे ज्यादा ध्यान हो जाता है तो वो पार्ट जो है वो निग्लेक्टेड रह जाता है. कभी काम छोड़ के छुट्टी लेके वो उसमें भी बड़ा गिल्ट होता है, तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी देखना पड़ता है. उसी पॉइंट पर आ रहा है कि समर वेकेशंस टाइप कुछ होता है कि नहीं? देयर इज नो वेकेशन, देयर इज नो सैटरडे संडे, देयर इज नो छुट्टी, देयर इज नो शिमला ट्रिप और मनाली ट्रिप है, नथिंग एट ऑल. तो इट इज वेरी रेयर, एंड स्पेशली बीइंग इन रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस, वहां पे बहुत कम स्कोप रह जाता है. एंड यू हैव टू रियली बैलेंस द बोथ. एंड आई थिंक इन आवर प्रोफेशंस
it is really the family that supports you. So my mother, my husband, who is also a civil servant, तो जितना support वो करते हैं उससे ही it really pushes you, because you are carefree कि घर पे someone is taking care of your child, and that is how you can give best at your job while you're at the job. तो I don't have to think twice कि बच्चे को कहाँ छोड़ के आए हैं. तो it is the family which supports you and there are no excuses. मैं एक एजुकेशन समिट की तरफ भी आऊं, जो पूरा हम आज थीम लेकर चल रहे हैं. स्कूल एजुकेशन का आपको कितना बड़ा रोल नजर आता है अगर किसी स्टूडेंट ने यूपीएससी की तरफ जाना है? मैं बहुत क्लियर शब्दों में पूछूं कि 8th 10th 12th ग्रेजुएशन के टाइम कहां एक स्टूडेंट को लगे, या आपको कब लगा कि हाँ ये आईपीएस की तरफ जाना है, मेरे को यूपीएससी की तरफ जाना है? See, education definitely plays the most important role. Schooling or family values, I think both go hand in hand. Schooling में जैसे कि थोड़ी सी रिफ्लेक्ट अपॉन हुई ड्यूरिंग द प्रीवियस डिस्कशन ऑल्सो, कि जैसे एक मैथ्स टीचर है वो हमें 50 तरह के सम्स नहीं कराता, वो हमें एक मेथड बता देता है जिससे हम 200 तरह के सम सॉल्व कर सकते हैं. सो एजुकेशन शुड बी concentrating on dealing on ways and means, on teaching a way of life, on teaching how to go about things. हर चीज जो हम जिंदगी में करते हैं वो सिखाई नहीं जा सकती, हर सिचुएशन हम पहले एक्सपीरियंस नहीं की होती. सो it is about shaping your personality, it is about shaping your persona. तो education definitely plays a very important role. One, academics, जो हम बात करते हैं कि स्कूल टाइम में academics strong होते हैं. दूसरा, एक attitude towards education, towards life, a general attitude, an attitude of not giving up, an attitude to always strive for excellence. तो ये सारी चीजें जब inculcate होती हैं, I think it is a 360-degree personality development of the child, of an individual. तो education के बिना I don't think anything is possible. Education in today's age, education is of prime importance, especially for women, because we are talking about that today. For your empowerment, for your personal empowerment, for your future, for everything, for your everything you are wanting to be in life. संगीता, मैं एक्चुअली एजुकेशन के ऊपर इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कई बार नहीं पता लगती है, स्पेशली इन यूपीएससी. और अगर मैं एयरफोर्स का जिक्र करूं, आप फैमिली बैकग्राउंड आपकी ऐसी थी कि शायद बहुत सारी चीजें आपको पता लग गई या पता लग गई होंगी, एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है कि रहा हो. पर बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा नहीं होता. बहुत सारी फीमेल्स आपको इस समय सुन रही होंगी जो स्पेशली ग्रुप कैप्टन जैसी किसी पोस्ट तक पहुंचना चाहती हैं, या एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहती हैं, या नेवी को या आर्मी को ज्वाइन करना चाहती हैं. उनके लिए क्या सजेशंस, क्या मैसेज है आपके और से कि हाँ ये एक वे हो सकता है कि आप उस फील्ड को या जहां आप तक पहुंचे वहां तक पहुंच सकती हैं? यस, इस पे मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूंगी दैट माय मदर हैड नेवर गॉन टू स्कूल. ठीक है, मेरी मम्मी कभी भी स्कूल नहीं गई थी, बट शी न्यू द पावर ऑफ एजुकेशन. उनको पता था कि एजुकेशन का महत्व क्या है, और इसलिए उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाया. जिस भी हालात में हमें, जहाँ पे भी, बिकॉज इनिशियली हम लोग एक विलेज में रहते थे उत्तराखंड के, एंड देन वी शिफ्टेड टू देहरादून, एंड उन्होंने अकेले रह करके हमें पाला, बिकॉज माय फादर वाज इन द आर्मी. एंड एम्पावरमेंट, एज यू राइटली सेड, बिगिंस विद एजुकेशन. तो अगर हम एजुकेटेड होंगे तभी हम अपने गोल तक पहुंच पाएंगे, चाहे वो गोल हमारा यूपीएससी हो, चाहे पायलट बनने का हो, चाहे कोई भी और कैरियर पाथ हम लेना चाहते हैं. बेसिक एजुकेशन बहुत जरूरी है. जब आप एजुकेटेड होंगे तो आप अपने यू विल नॉट लिमिट योर सेल्फ एंड यू विल बी एबल टू ड्रीम. और जब आप सपने देखेंगे तभी आप एक गोल को चुनेंगे कि हाँ ये मेरा सपना है, इसको मुझे अचीव करना है, एंड दैट विल हैपन ओनली विद एजुकेशन. So once you understand that, okay, you want to become a pilot or you want to join the Air Force, then you should know that these are the qualifications that I need. आजकल तो सब कुछ इंटरनेट पे बहुत अवेलेबल है, उस जमाने में नहीं अवेलेबल था. आजकल everything is available. So you should know that, okay, if I want to become a pilot, I have to study maths and physics in my 12th. अगर मैंने maths और physics ही नहीं पढ़ा 12th में, तो फिर मैं pilot नहीं बन सकता हूँ. And now in your graduation final year, you decide that, okay, I want to become a pilot. By that time, it's too late.
So you have to set your goals and your passion very early in your life and then focus and work towards it. तो अगर आपने so फौज में जाने के लिए कोई भी सर्विसेज हो जाने के लिए 2 एंट्री लेवल्स हैं. एक आपके 12th के बाद का एंट्री लेवल है और एक आपका ग्रेजुएशन का एंट्री लेवल है. 12th के बाद अगर आप जाते हैं तो आप एनडीए ज्वाइन करेंगे और अभी तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी बेटियां भी अब एनडीए में हैं. सो दिस इज अ 3rd बैच आई थिंक जो कि एनडीए में जा रहा है. तो लड़कियों के लिए भी एनडीए ही एक इंस्टीट्यूट रह गया था, वो भी अब इट इज ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग वुमेन. सो नाउ इफ यू आर आफ्टर योर 12th इन केस यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन एनडीए. आप चाहे लड़के हों चाहे लड़की, और एनडीए में आपको तीनों चॉइसेस मिलते हैं. यू कैन चूज आर्मी, एयरफोर्स एज वेल एज नेवी. You give your priorities and then you join NDA. There's a rigorous selection process. It's a very long selection process. You give your written, then you give your SSB. After your SSB, you go for your medicals. Medical के बाद में फिर आप all India merit list में जाते हैं, and then finally you join NDA. So likewise, after your graduation also, you have various entries. Like you have combined defense services exam, CDS exam entry. This you can give in your final year of your graduation. And you can also give AFCAT if you want to join Air Force, Air Force Common Admission Test. Then you can give INET in case you want to join Navy. And if you are an NCC special entry student, then you can also have NCC special entry wherein आपको written exam देना ही नहीं है. So graduate entry पे भी आपके पास बहुत सारे levels हैं जिसके through आप फौज को join कर सकते हैं. And once you join, you will initially join as the first rank, that is Air Force में join करेंगे, flying officer होंगे, Army में जाएंगे तो captain होंगे. And as you graduate, subsequently you can become the chiefs also. You can become the chief of the air staff and the chief of the army staff as well. Hopefully बहुत helpful होगा जो भी इसको सुनेंगे. आपने एक जिक्र किया कि उस टाइम इंटरनेट की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी जितनी आज है. इनफैक्ट आज तो हम इस सेशन में एआई को बहुत डिस्कस कर रहे हैं. तो ये भी आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ये कॉम्पिटिशन्स को और बढ़ा देंगे, या किस तरह से आप इसको देखते हैं कि या बहुत आसान भी कर सकते हैं चीजें जिनको ये चीजें ऑपरेट करनी आ रही हैं? एआई या चैट जीपीटी का बहुत जिक्र हो रहा है. हाँ जी, मुझे लगता है कि कोई भी जो चेंज होता है, कोई भी परिवर्तन होता है, उसमें हम बहुत एप्रीहेंसिव होते हैं. और एआई भी एक वैसे ही परिवर्तन है जिसके लिए अभी हम बहुत एप्रीहेंसिव है. जैसे सोशल मीडिया जब आया था हम बहुत एप्रीहेंसिव थे, पर सोशल मीडिया के भी दोनों पहलू थे. आप उसको अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हैं और आप उसमें समय भी बर्बाद कर सकते हैं. दोनों पहलू हैं. तो एआई का भी वैसे ही है. बच्चे अगर चाहेंगे तो एआई को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने एडवांटेज के लिए, और अच्छे से सीख सकते हैं. बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट पे इस चीज का फायदा भी उठा सकते हैं. और अगर आप जैसे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी की पिछले सेशन में बात करी, अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो फिर आप एआई का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. तो मैं स्टूडेंट से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो भी चेंज आ रहा है आप उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज कीजिए. चाहे वो सोशल मीडिया था तो भी आप एडवांटेज के लिए यूज कीजिए. इतना सारा अवेयरनेस आपको आप सोशल मीडिया के थ्रू मिल जाती है. लाइकवाइज एआई भी आप अपने एडवांटेज के लिए यूज कीजिए, जिससे आप अपने अवेयरनेस लेवल्स को, अपने पर्सनालिटी को फर्दर ग्रूम कीजिए, बेटर कीजिए, ताकि आप अपने पैशन के लिए और अपने प्रोफेशन के लिए फिट हो सके. कमल मैम, एक सवाल है कि बहुत सारे क्रिमिनल्स को फेस आपको भी करना पड़ता होगा. ये मेल क्रिमिनल्स और फीमेल क्रिमिनल्स कोई फर्क नजर आता है कभी? सी क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल फॉर अस. तो जैसे आज वो बड़ा लुधियाने वाला बड़ा केस इट्स बीइंग हाईलाइटेड अ लॉट. So I think everyone who's on the wrong side of the law is a criminal for us. डायरेक्टली पूछूंगी, ये कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं रहता फीमेल क्रिमिनल्स के लिए? नहीं, not at all जी, not at all. मैं as I said that everything on the wrong side of the law, caught on the wrong side of the law is a criminal for us. Yes. और ऐसा कभी भी कोई भी फीलिंग या कोई भी ऐसा नहीं होता. एक और चीज, क्योंकि आप पंजाब में अलग अलग जगह पर, आपने मलेरकोटला फिरोजपुर का जिक्र किया, नाउ यू आर इन चंडीगढ़. तो चंडीगढ़ में फोर्ट्स और साथ साथ एक सीसीटीवी फोर्ट्स, दोनों बहुत एक हेल्पफुल चीजें हैं. तो दोनों को कैसे कंपेयर करते हैं आप, जो मलेरकोटला या पंजाब में किसी जगह पर हैंडल करना बतौर एसएसपी और चंडीगढ़ में? सी पुलिसिंग इन इंडिया इफ यू टॉक अबाउट, हमारे जो गाइडिंग लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज हैं, वो सेम है सारे इंडिया में. पंजाब और चंडीगढ़ की फोर्स दोनों, पंजाब पुलिस रूल से पावर्स ड्रॉ करती है, तो ऑर्गेनाइजेशनली ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में जी. ऑब्वियसली देर आर, जैसे चंडीगढ़ की हम बात करें, जैसे आपने बोला फोर्स थोड़ी ज्यादा है. सो एज एन एसएसपी माय थानाज हैव मोर फोर्स. जितना रिसोर्सेज हमारे पास पंजाब थे, मैन पावर जरूर ज्यादा है, बट उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग में या ऑब्वियसली लीगल एस्पेक्ट्स तो सब सेम ही है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है.
चंडीगढ़ में विद द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जिससे पूरा चंडीगढ़ में सीसीटीवीज का नेटवर्क है, कुछ लेवल पे एआई वहां पे भी यूज कर रहे हैं, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स हैं, ब्लैक लिस्टेड नंबर्स को हाईलाइट और पिंक से पता चल जाता है। तो ऑब्वियसली टूल्स ऐसे, जब एक कन्फाइंड सिटी होती है वहां पे कोई भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती है। पंजाब की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट्स आर बिगर डिस्ट्रिक्ट्स, जहां पे इतने रिसोर्सेज और जहां पे इतनी फोर्स और इतने टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज कई बार नहीं होते, तो उतना फर्क जरूर है और इससे डेफिनेटली पुलिसिंग पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। पिछले टाइम में हमारे जो सीसीटीवी कैमरास का नेटवर्क है चंडीगढ़ में, इन दिस ईयर आई थिंक ओवर 200 केसेस वर सॉल्व्ड एंड ट्रेस्ड जस्ट because of our CCTV cameras network. So technology definitely helps us, and as we were discussing before the session, ki we are moving forward, and there are many other artificial intelligence tools that police forces all across the world are adopting and going ahead with. मैम, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे। एक्चुअली बहुत सारी चीजों के बीच एक जो आप जिक्र कर रही हैं, मैम हैंडल करते हैं जो एनिमी है सोसाइटी के, और एयरफोर्स हैंडल करती है जो एनिमी है कंट्री के। तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव में रही हैं, किस तरह से उन चीजों को हैंडल किया जाता है? जो इनपुट्स हैं वो मैं सीधे शब्दों में पूछूं कि क्या वहां पर कभी कोई पैनिक सिचुएशन होती है, कि कोई डर वाली सिचुएशन होती है ऑफिस में, एयरफोर्स के पायलट्स में? पैनिक तो मुझे नहीं लगता है कि होता है, बिकॉज हम उससे से ट्रेन ही नहीं किए जाते हैं कि हम पैनिक में जाएं। जो ट्रेनिंग होती है वो आपको यही सिखाती है कि कैसे आप पूरे केओस में भी आप अपने आप को बैलेंस रख सकें और एक अच्छा सूझा समझा डिसीजन आप ले सकें। इसी के लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रेन किया जाता है फौज में। एंड जो सिचुएशंस होती हैं, वो जो सिचुएशंस आती हैं वो बहुत ही मैं कहूँगी ऑपरेशनली एक्टिव सिचुएशंस कई बारी होती हैं। जैसे मैंने जब फौज ज्वाइन की थी 1998 में मैं कमीशन हुई थी, और 1999 पे ऑपरेशन कारगिल, जो हमारा ऑपरेशन विजय था, कारगिल का मई में कारगिल शुरू हो गया था ऑपरेशन, एंड मैंने जनवरी में ही ज्वाइन किया था। सो आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, जहां जहां मैं गई हूँ वहां कुछ ना कुछ ऑपरेशन होते रहे। सो इट वाज अ टाइम व्हेन द एंटायर नेशन वाज एक्टिव। सो जो एयरफोर्स में जो प्लानिंग होती है, वी आर सो ट्रेन्ड, और हम इतने सारे एक्सरसाइजेस करते हैं so that our operational preparedness at any point of time is very high. It is at the peak. So if when something happens, we know that, okay, these are the steps that we need to take, and we are very well prepared for it. So there is no panic. Then when I went to, after this I went to Nalia, and जैसे मैं नलिया पहुंची तो वहाँ भुज earthquake हो चुका था, और relief operations पे हम लग गए थे तुरंत ही. So I reported in 2001 February, and January was the भुज earthquake. So उसमें भी हमारे बहुत SOPs वगैरह बहुत क्लियर होते हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस होते हैं कि अगर ये सिचुएशन होगा तो आपने क्या क्या करना है. सो एवरीथिंग हैपेंस वेरी फास्ट, वेरी क्विक, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ टाइम, mobilizations happen very fast. And then immediately after the earthquake, I was into Operation Parakram. This was after the Indian Parliament was... there was an attack on the Indian Parliament in 2001, because of which there was a massive mobilization, military mobilization in the western sector. And there's a lot of augmentation that happens. All the units move towards that direction. जैसे अभी आपने ईस्टर्न फ्रंट में भी कुछ समय पहले देखा होगा. So everything is very planned and there is no panic ever. And I think the forces are well prepared to take on any contingencies that happen to prevent and to safeguard the nation. कमल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे जरूर, एक्चुअली मैं AI से जुड़ा सवाल जरूर पूछना चाह रहा था. साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा चैलेंज इस समय पुलिस के सामने है, और इन बिटवीन ये AI भी पूरी दुनिया के सामने आ रहा है. तो किस तरह से अपग्रेड पुलिस हो, स्पेशली साइबर क्राइम को लेके, उसके लिए भी कोई पूरा रोड मैप कुछ इस तरह से तैयार किया जा रहा है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है. बहुत सारे लोग इस समय आपको सुन रहे होंगे और बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई है साइबर क्राइम की वजह से. जी बिल्कुल, एज आई सेड बिफोर कि हर तरह की सिचुएशन हमें पहले नहीं पता होती. साइबर इज अ न्यू डोमेन, और जैसे जैसे साइबर क्रिमिनल्स एक्टिव हो रहे हैं, वैसे वैसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑल्सो, वी आर, आई वुड से, समटाइम्स अ स्टेप अहेड ऑफ देम. तो बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स पकड़े भी जा रहे हैं.
कहीं किसी लेवल पे मुझे लगता है अवेयरनेस की भी बहुत जरूरत है, जो पुलिस एक्स्ट्रा एफर्ट लेती है। हालांकि हमारा काम उतना होता है कि हमें कोई ऑफेंस और क्रिमिनल को पकड़ना है, बट बिकॉज वी हैव टू प्रिवेंट अ क्राइम ऑल्सो, तो हम अवेयरनेस की तरफ भी जाते हैं, स्पेशली एल्डर्स, चिल्ड्रन एंड दोज पीपल हु डू नॉट नो जो किस तरह से हमें साइबर पे सेफली ब्राउज करना है, सेफली ऑपरेट करना है। बट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑब्वियसली फेसेस दिस चैलेंज। धीरे धीरे हम अपनी भी कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे हैं। एक्चुअली ये भी और कहते हैं कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो 2 कदम आगे होते हैं कई बार नहीं, पुलिस से भी। सी इट इज अ कैट एंड माउस गेम एंड इट ऑलवेज स्टेज लाइक दिस। ये हमेशा से ऐसे चला आ रहा है, और जैसे जैसे उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं, पुलिस की भी बढ़ रही हैं। चंडीगढ़ पुलिस बहुत बड़ा इनिशिएटिव अभी लेने जा रही है। सेनकॉप्स करके एक बहुत बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर यहाँ पे खुलने जा रहा है, जिसकी पीछे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेशन भी की है आके, एंड विल बी वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स इन नॉर्थ इंडिया which will deal in techniques to counter cybercrime and investigate cybercrime cases. So obviously there is a challenge, and there is also a parallel development in capabilities of police forces. And I think कि जैसे अभी तक police has been able to meet all the challenges, और ये भी आसानी से हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच मैम न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए, और होपफुली बहुत सारी बातें हो गई हैं और शायद रह भी गई हैं, और आगे भी होपफुली उनके ऊपर हम बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Thank you so much, ma'am. बैक टू अर्श। Thank you. Ma'am, please stay on the stage. I'd now request our managing editor, Jyoti Kamal, to please come on the stage and felicitate our guests. Kamardeep Kaur, SSP, Chandigarh. Retired Group Captain Sangeeta Kathat. Thank you so much. Thank you. In Thapar Institute of